Present here. I, Shweta Agarwal, on behalf of Ehsaas Women of Faridabad, welcome you all to the second edition of Kalam in Faridabad. Kalam is an initiative of Prabha Khaitan Foundation, a Kolkata-based NGO engaged in various social welfare activities and promotion of Indian culture. Kalam started in the summer of 2015 in Jaipur, primarily as a session of conversation with a selected author covering his or her entire range of work as opposed to a book launch or a book reading. Almost from the first session, the series gained immediate acceptance from the audience, and of course, the featured authors really encouraged us to keep the series going. It is my honor and privilege to welcome one of the most talented author come television personality, Mr. Vijay Trivedi. Vijay Trivedi is a writer and senior journalist with more than 30 years of experience in TV, print, radio and digital media. Currently working as editor, HS News, digital platform and YouTube channel of Hindustan Samachar, the oldest and only multilingual news agency. He has authored 3 books. Recently, BJP, Kal, Aaj aur Kal. Earlier book on UP Chief Minister Mr. Yogi Adityanath, Yada Yada Hi Yogi. Released in June 2018. His first book on Bharat Ratna and former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, Haar Nahi Manunga. To be in conversation with him, we have another talented personality, Mr. Tarun Gupta, CA by profession. So to take this session forward and not wasting time further, I would like to welcome both of you to start this session. So friends, please sit back, relax and enjoy the session. I wish happy learning to all of you. Thank you. Please step up. Privileged to interact with such a legendary personality, Mr. Vijay Trivedi, and for this I am thankful to Prabha Khaitan Foundation and today Mr. Hassan Prabha Khaitan Foundation, and also thankful to Shweta Agarwal, the founder of Books and Beyond. Vijay ji, first of all, I welcome you. Thank you very much. And it was second Khaitan Foundation also in Ehsaas. Yeah. Today basically it's the second program of this series of Kalam chapter of Faridabad. And मुझे मौका मिला आपकी नई किताब पढ़ने का, बीजेपी कल आज और कल. और जैसा कि मैंने इनके बारे में पढ़ा कि राजस्थान से बड़े हुए और 1989 से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं हमारे देश में उन सब इलेक्शंस को कवर किया है विजय जी ने. तो आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए कि इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट से हम बात करेंगे और हम इनसाइट जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बुक लिखी है बीजेपी कल आज और कल, तो आज बीजेपी जो नाम है पूरे वर्ल्ड में, ना कि पूरे हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपने आप एक बड़ा नाम है बीजेपी. उसके जो छोटे छोटे और बड़े इनसाइट्स हैं वो जानने का मौका मिलेगा हमें. सर, सबसे पहले तो मैं आज आपसे एक बात करना चाहूंगा कि पहले आपकी पहली बुक थी हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुए हैं उनके ऊपर लिखी आपने. दूसरी किताब आपने लिखी योगी जी के ऊपर. तो शायद लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपकी तीसरी बुक जो है वो शायद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर होगी. तो ये बीजेपी कल आज और कल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नरेंद्र मोदी जी की बुक लिखने की बजाय इनडायरेक्टली वही बुक आपने कल आजकल के ऊपर लिख दिया आपने, ऐसा कुछ? वैसे आजकल लोग कहते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही बात. दोनों एक ही बात है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नरेंद्र मोदी कल आज और कल बुक होगी. तो सर, हम इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आपके मन में ख्याल आया ऐसा लिखने का, ये मैं आप जानना चाहेंगे. एक तो जब से पहले जब हमने लिखी थी योगी जी पर किताब लिखी थी उसके बारे इलेक्शन से पहले, उसके बाद चर्चा हुई थी हमारे पब्लिशर्स के साथ, तो वो चाहते थे कि कुछ बीजेपी पर काम किया जाए, एक और किसी प्रोफाइल पर बायोग्राफी लिखने की बात थी. लेकिन मेरा आइडिया था कि हम बायोग्राफी ना लिखें किसी पर्सन पर,
और बीजेपी पर कुछ काम किया जाए। इस इलेक्शन से पहले की बात है ये, 2019 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस पार्टी को टर्न अराउंड किया और बीजेपी जो बढ़ रही थी उसको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जो मोर देन 10 करोड़ उसके वर्कर, कार्यकर्ता जो भी लोग थे उसको लेकर। और शायद मैंने बहुत सारे देश मतलब विजिट भी किए, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ भी गए और भी जगह गए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में शायद कोई देश हो जहाँ पर बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं हो गई। तो उस तरह की एक बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि मेरी खुशकिस्मती कहिए जो भी कहिए कि मैं जब 1984 से जर्नलिज्म में आया तब से बीजेपी को देख रहा था और ऑलमोस्ट 3 जनरेशंस ऑफ बीजेपी आई कवर्ड एक्चुअली। तो बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी हो गई हो, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी जिनको मैंने नहीं देखा, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक या लालकृष्ण आडवाणी जो बीजेपी अध्यक्ष रहे वहां से अमित शाह तक इस पार्टी में क्या बदलाव हुए और जिसे हम एक जमाने तक कहते थे कि चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी है, क्या वो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी रही या नहीं रही, या ऐसे कौन सी बातें हुई जिससे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। जो 1984 में जब बीजेपी के सबसे बड़े लीडर्स होते थे लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, तब 2 एमपीज पर थी और आज वो 303 पर पहुंच गई है। तो विचारधारा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें। और 10 करोड़ हो जाने के बाद भी क्या बीजेपी वही है, क्या दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, या एक बार चर्चा हुई कि गुरु गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर जो आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक हुए, उनके साथ बीजेपी जनसंघ उस समय हुआ करती थी, जनसंघ के नेताओं की बैठक हो रही थी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि विचारधारा के साथ चलकर सरकार में नहीं आया जा सकता। तो जो सरसंघचालक थे उन्होंने उनको कहा, बहुत सारे उदाहरण दिए दुनिया भर के, और उसमें कहा गया कि विचारधारा के साथ चलकर भी भले ही वक्त ज्यादा लगे आप सरकार में आ सकते हैं। तो आपकी बात से लगता है कि अभी मैं पढ़ रहा था बुक में, आपने आरएसएस और बीजेपी को बड़ा अच्छा डिफाइन किया है बुक के अंदर कि पहले की सदी में जब पिछले कल की बात करते हैं तो कल में जैसे आरएसएस जो था वो विचारधारा पे चलना चाहता था और बीजेपी का मत था नहीं, विचारधारा के अलावा हमें चलना होगा। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखा मुझे। परंतु आज जो मोदी और आरएसएस है वो कहीं ना कहीं विचारधारा की बात कर रहे हैं, तभी उन दोनों का मेल जो है वो अलग से निकल रहा है। 1984 में जब बीजेपी हारी और 2 एमपीज आए तब ये सवाल फिर से आया था। उस समय ये बात हुई, संघ ने कहा, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे और वो गांधीयन समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद पर चलना चाहते थे, क्योंकि जनता पार्टी तोड़कर जनता पार्टी जब अलग हुए जनसंघ के लोग और वापस भारतीय जनता पार्टी बनाई, तब भी ये डिबेट हो रही थी 1980 में कि बीजेपी जो बनेगी, नई पार्टी जो बनेगी वो किस रास्ते पर चलेगी। तो वाजपेयी उस समय सबसे बड़े लीडर थे, उनका गांधीवादी समाजवाद पर चलेगी। ये थोड़ा सा अलग रास्ता था जनसंघ से, और शायद यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी से अलग होने के बाद वापस जनसंघ को रिवाइव नहीं किया और एक नया नाम दिया भारतीय जनता पार्टी। उसमें ज्यादा हिस्सा जनता पार्टी वाला था, क्योंकि जनता पार्टी से निकल कर आए थे, तो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलाकर बनाया। उस समय एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी, थोड़ा सा मैं सुझाव दूं कि जब झंडा बनाने की बात हुई, फ्लैग बीजेपी का बनाने की बात हुई, तो 1980 में इस पर बड़ी डिबेट हुई बीजेपी में और कहा गया कि भगवा जो है सैफरन कलर के झंडा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वाजपेयी और उनका नहीं, उसमें हरा रंग भी शामिल किया गया और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बनी जनसंघ से, जिसमें भगवा के साथ हरा रंग भी शामिल था। लेकिन जब 84 में हार गए तो सब लोग वाजपेयी जी पर चढ़ गए कि ये देखिए आपका जो गांधीवादी समाजवाद है वो नहीं चलेगा और हमें विचारधारा पर चलना पड़ेगा। और उसी का नतीजा हुआ कि वाजपेयी थोड़ा सा साइडलाइन हो गए और लालकृष्ण आडवाणी वहां पर आए विचारधारा। जब रथ यात्रा शुरू हुई तो वो उसी का हिस्सा है। पर आपने बहुत राइटली अभी बात बोली कि पहले के युग में, कल में वाजपेयी जी और आडवाणी जी 2 बड़े नाम थे, 2 बड़े नेता थे और साथ में जोशी जी को जोड़ दे तो त्रिदेव बनता था बेसिकली। पर हम जोड़ी की बात करें तो उस जोड़ी का आपने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है और आज की इस जोड़ी का जी, जो कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह की जोड़ी है।
तो आज मैं, क्योंकि मैं बहुत पुराना पॉलिटिक्स में नहीं रहा, बट मैंने जो नजदीक से देखा है कि जब 2004 का इलेक्शन जब पॉलिटिकल पार्टीज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सारे ही चल रहे हैं। तो 2004 में जब शाइनिंग इंडिया चल रहा था, तो मुझे ध्यान है हमारे एक सेमिनार में अरुण जेटली जी उस समय मिनिस्टर ऑफ कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो आए तो बड़े लंबे लंबे भाषण शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे कि 300 सीट लेके जाएंगे, इतने सीट लेके जाएंगे। 2004 या 4 की बात कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट उनका टर्म आया। तो और मैं हैरान भी होता हूँ कि मैं उस समय मध्य प्रदेश में गया, तो जगह जगह जहां भी देखा तो उस समय एक नया कंसेप्ट था, सड़क योजना पे काम चला, प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क क्या योजना पूरे हिंदुस्तान में सड़कें बनी, इतना काम हुआ। और बहुत ही कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाला एनडीए भी था। आपने अपनी बुक में मेंशन किया कि आज का एनडीए और उस समय का एनडीए, बल्कि आज के एनडीए में जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो कहते हैं यार उस समय का एनडीए अच्छा था, आज तो कोई पूछता ही नहीं हमें। तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय का शाइनिंग इंडिया फेल हो गया, धराशायी हो गया एकदम से। और आज जबकि इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट, डिमोनेटाइजेशन, मतलब इससे बड़ा तो क्या हो सकता है देश में कि 8 बजे शाम को अनाउंस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की कल से नोट बंद हो जाएंगे। और एक अभी मैं कल परसों मीटिंग में था, जीएसटी की बात कर रहे थे कि पूरे विश्व में जिस भी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो नेक्स्ट इलेक्शन में इनकम्बेंसी फैक्टर से वो वहां पे वो हार देता है। और यहां पर जब मोदी जी को बताया गया आप क्या गुनाह कर रहे हैं, कल को आप भी हार जाएंगे, ही सेड नो, मतलब ही इज सो डिटरमिन्ड। तो उस बारे में सर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा इस जोड़ी ने क्या करिश्मा कर दिखाया जो इस बार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। देखिए बहुत अच्छा सवाल भी है, बहुत अच्छी बात भी है। यदि 2004 की बात करें पहले, तो 2004 में बीजेपी के जो लीडर्स थे, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपने जेटली जी का जिक्र किया, एक और बड़े नेता थे प्रमोद महाजन, वो, और एनडीए के एक बड़े लीडर थे चंद्रबाबू नायडू। उन सबको उससे पहले 2004 के चुनावों से पहले 2003 के दिसंबर में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनके उसमें बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला। उससे उन लोगों को लगा कि देश में बीजेपी के लिए माहौल है, पहली बात। दूसरी बात, उससे जो बहुत समय से पीएम इन वेटिंग के लिए सांस रोक कर चल रहे थे, इंतजार कर रहे थे लालकृष्ण आडवाणी, उनको लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता दोबारा सरकार में आने का, तो वो बेचैन थे। और जो इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए थे, उन्हें लगा कि नवंबर तो बहुत दूर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ही प्रेशराइज्ड वाजपेयी टू प्रीपोन द इलेक्शंस। तो उन इलेक्शंस को उस वक्त प्रीपोन किया गया। और वो जो नारा था शाइनिंग इंडिया का, वो लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन ने कॉइन किया। और पूरा इलेक्शन कैंपेन प्रमोद महाजन साहब ने प्लान किया और वाजपेयी जी का इंतजार किए बिना भारत उदय यात्रा पर लालकृष्ण आडवाणी निकल गए, ठीक है। और वो उस रथ पर सोच रहे थे कि ये रथ सीधा लाल किले जाकर रुकेगा लेकिन वो शाइनिंग इंडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान, शायद इसमें मैंने जिक्र नहीं किया, वाजपेयी जी वाली बुक में जिक्र है उसका, कि मैं वाजपेयी जी के साथ ट्रैवल कर रहा था, कई राज्यों में हम लोग गए, तो वाजपेयी जी ने कहा कि शाइनिंग इंडिया का जो असर है वो वैसा नहीं दिख रहा उस समय। लेकिन जब लीडर कैंपेन में होगा तो यही बोलेगा कि बहुमत मिलेगा, हमेशा ऐसा ही होता, कोई भी होता है। तो जैसे प्रमोद जी कहा करते थे उस जमाने में कि चुनाव में जाने वाली पार्टियां और चुनाव से पहले टिकट लेने वाला कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो जिसकी जमानत जब्त भी हो रही है चुनाव में, वो कहता है सर मेरा वोट का पूरा इक्वेशन ऐसी है कि मैं कम से कम 2 लाख वोट से जीतूं। उसको मिलते 20,000 वोट भी नहीं है टोटल। तो एक वो होता है इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। और पार्टी के जो लीडर्स है वो हमेशा कहते हैं कि वो भारी बहुमत के साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे। तो वो शाइनिंग इंडिया की जो चमक फीकी थी वो वाजपेयी जी को उस इलेक्शन के दौरान लग गई थी। आडवाणी जी को भी समझ में आ गया था, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी और इलेक्शन में चले गए थे, और लगा कि शाइनिंग इंडिया का जो असर होना चाहिए वो हिंदुस्तान के आम आदमी तक नहीं हुआ, उसका नुकसान वहां पर हुआ। यहां जब आप बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की, 2019 के इलेक्शन से पहले जिस 8 नवंबर की बात आप कर रहे हैं 2016 की, जब डिमोनेटाइजेशन की बात की और पूरा देश घबरा गया,
सब लोग तरुण जी की तरफ देखने लगे रात को 10:30 बजे कि आप डीमोनेटाइजेशन के बाद आप ही सहारा हैं। हम अपने लगे हुए थे। तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब उस इलेक्शन कैंपेन में हम लोग घूम रहे थे तो उस समय तो बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी, कुछ लोग मीडिया के लोग कह रहे थे बहुत नेगेटिव होगा, ये सब होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और बीजेपी बड़ी मेजोरिटी के साथ वहां पर आई। उसको नेगेट करने के लिए दूसरा जो स्लोगन था वो कॉइन किया गया। डिमोनेटाइजेशन को जिस तरह से नेगेट किया, उसमें कहा गया कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब जो तरुण जी के सारे मित्र लोग हैं, उनका नुकसान होने वाला है, गरीब लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो हम जैसे गरीब लोगों को अच्छा लगा कि चलो किस तो नुकसान हो रहा होगा, तो हम लोगों ने फिर उनको बोल दिया। तो डीमोनेटाइजेशन का आपको पता है उल्टा फायदा ही हुआ है। Their accounts were used by the big people। तो बता, अच्छा आप जो जोड़ी की बात कर रहे थे सर, अभी तो ये बात हो गई कि डीमोनेटाइजेशन, आप जोड़ी के बारे में सर क्या कमेंट करेंगे कि जो आप अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी है, बड़ा आप नाइसली आपने बुक में लिखा है कि मतलब वहां पे जो था वो लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच में हमेशा से दिखा आपने कि वो कंपटीशन रहा उनमें जी, बट यहाँ पर तो एक फॉलोअर वाला मुझे लगता है फॉलोअर वाला है। आप तो बहुत क्लोज रहे हो। दोनों जोड़ियों में एक बड़ा फर्क तो ये है कि वाजपेयी जी अडवाणी जी की जोड़ी बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल जोड़ी रही, और तब लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई शायद दूसरी पॉलिटिकल जोड़ी बनी ही नहीं है जो वाजपेयी अडवाणी जी जैसी हो किसी भी पार्टी में, नॉट इवन इन बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी में भी। और 2014 का ही जो इलेक्शन, 2004 का जो इलेक्शन है, उसमें मैं अडवाणी जी के साथ ट्रेवल कर रहा था उस रथ यात्रा में, उनके रथ में उदय या जो थी भारत उदय शाइनिंग इंडिया का, तो उसमें मैंने उनसे सवाल किया था, उसका जिक्र भी इसमें मैंने किया है शायद, कि आपकी और वाजपेयी जी की जोड़ी जो है वो सबसे लंबे समय तक जोड़ी रही है, क्या आप बीजेपी में कोई दूसरी जोड़ी की उम्मीद करते हैं? तो शायद उनके पास उस वक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं था, और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी को मैं हमेशा बड़ा नेता मानता रहा और उनको फॉलो करता रहा, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़े नेता हैं और मेरे गुरु हैं, ये सब बातें हैं। ये अलग बात है कि उस दौरान जो पॉलिटिक्स होनी थी, अडवाणी जी की जो कोशिश थी वो भी होती रही, नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली जोड़ी है, और अमित शाह जी को खास तौर से जो बहुत मजबूत नेता आज हो गए हैं, गृह मंत्री भी हो गए, होम मिनिस्टर हो गए हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी, ये भी बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी में ये स्लोगन हमेशा चलता रहा कि बीजेपी वन मैन वन पोस्ट, मतलब यदि मंत्री बन गए हैं तो आपको अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष बनना है। तो ऐसा हुआ वाजपेयी जी के वक्त में हुआ कि वेंकैया नायडू को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया, फिर जनक कृष्णमूर्ति को बनाया गया तो जनक कृष्णमूर्ति ने इस्तीफा दिया, फिर 2014 के इलेक्शन में राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे और जब वो होम मिनिस्टर बने मोदी सरकार में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। ये पहला मौका है बहुत लंबे समय बाद जब होम मिनिस्टर भी हैं और वो अध्यक्ष भी हैं। बट प्रैक्टिकली कार्यकारी अध्यक्ष भी और बना दिए उन्होंने। कार्यकारी अध्यक्ष अलग है, पार्टी वो तो एग्जीक्यूटिव करने के लिए, फाइल भेजने के लिए, लेकिन अध्यक्ष वो अमित शाह ही है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं तय कर रखी हैं। उसका उदाहरण मैं बताता हूं कि 2019 के चुनाव में पार्टी के कुछ एमपीज के टिकट कट गए, 50 से ज्यादा टिकट काटे थे लेकिन कुछ टिकट कटे। वो लोग नरेंद्र मोदी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, मेरा टिकट काट दिया है अमित शाह जी ने, इस पर आप बात करें। तो मोदी जी ने उस पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं इसमें दखल नहीं देता, यू हैव टू स्पीक टू दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मैन। और अमित शाह जो है वो मोदी जी की जो सरकार का कामकाज था अभी तक होम मिनिस्ट्री से पहले, उसमें दखल नहीं दे रहे थे। पर आपको क्या लगता है आज होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास आना, पूरा देश एक आस लगाए बैठा है, वो कुछ उम्मीद कर रहा है, जैसा कि मैं आप एक अध्याय आपका है राम तेरे नाम पर, कि बीजेपी अगर जब से हमने होश संभाला है तो जब भी इलेक्शन लड़ता रहा है वो राम के नाम पर इलेक्शन लड़ा उसने जी, चाहे वो अडवाणी जी की रथ यात्रा भी सिर्फ राम के ऊपर थी,
तो अब ऐसा क्या हो गया कि पूरी पावर में पिछले टर्म में आने के बाद भी, आज भी आने के बाद भी, अब वो कहते हैं सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब पहले तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आज उन्होंने सब कुछ कोर्ट पे छोड़ दिया है। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? आपको लगता नहीं कि बोले ये चेंज क्यों आया उसके अंदर? सर बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि हम मंदिर में जाते हैं, है ना, तो वो मान लीजिए जॉब कर की इंतजार है कि भाई नौकरी लगनी चाहिए या रिजल्ट आने वाला है, तो भगवान को कहते भगवान तू मेरे को पास करवा दे, तो मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा और सुबह चढ़ाऊंगा। फिर इडियट वाली बात कर रहे हैं। फिर रिजल्ट आता है तो फिर कहते भगवान रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आ जाएगी तो मैं परसों प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा। फिर मार्कशीट आती है तो फिर कहते हैं हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान, 500 का तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास है नहीं। और करते करते क्या होता है कि आप अगली क्लास में चले जाते हो और प्रसाद रह जाता है। तो इसको हम कैसे मतलब कोरिलेट करेंगे उस बात से? जरा प्रसाद मिल गया ना, प्रसाद हो मिल गए गया ना, मतलब आप बोले पास हो गए हैं, पास हो गए हैं, तो अब वो दोबारा इम्तिहान आएगा तो फिर दोबारा फिर राम का नाम लेंगे। और अभी मैं एक और बेसिक आइडियोलॉजी में फर्क देख रहा हूँ। मतलब ये तो एक बहुत ग्रेट चेंज है। जैसा कि पहले मैंने बोला कि जो गर्भ नाल का जो रिश्ता उन्होंने बताया है बीजेपी और आरएसएस का पुराने समय में, आज के आरएसएस के जो सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, मतलब वो भी वही वाणी बोल रहे हैं। अभी जो 2018 में अभी जो दिल्ली में महासभा हुई, वो कहते हैं कि जो हिंदुत्व है वो मुस्लिम के बिना एग्जिस्ट नहीं करता जी। मतलब ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, जिस स्टेट में पूरा देश मिल गया। इसके बारे में जरा क्या? देखिए वो एक बड़ा चेंज सबको लगता है, खासतौर से उन सब लोगों को लगता है जो संघ को पढ़ते नहीं है, ठीक है। और बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा से हम लोग आरएसएस को देखते हैं। बड़ी बात बोली आपने, ठीक है। आप यदि संघ के तीसरे सरसंचालक हैं बाला साहब देवरस, इनका नाम था मधुकर दत्तात्रेय देवरस, उन्होंने जो उनसे पहले दूसरे सरसंचालक थे गोलवलकर जी, उनके पूरे डिजाइन को चेंज कर दिया, उनके कॉन्सेप्ट को। उनकी एक बुक होती थी बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। उस किताब को भी अब संघ ने रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको कि आरएसएस की सेकंड चीफ सरसंघचालक की जो बुक है बंच ऑफ थॉट्स, उसके बहुत बड़े हिस्से को संघ ने रिजेक्ट कर दिया है और ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हम इस हिस्से को नहीं मानते। उसकी सफाई ये थी कि जब गोलवलकर साहब ने बोला था, वो किताब उनकी लिखी हुई नहीं है, वो कहते हैं स्पीचेज का कलेक्शन है, तो जब वो बोला था उस वक्त दूसरा था, जमाना दूसरा था, उस माहौल में गोलवलकर साहब ने ये बोला होगा। ये तो एक बात है। क्या बोला आपको जान पाए? माइनॉरिटी के खिलाफ बोला, मतलब उस पर बहुत अच्छी बात नहीं कमेंट कर। लेकिन बदलाव महत्वपूर्ण है। बदलाव ये हुआ कि जब बाला साहब देवरस आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का और ईसाइयों की संघ में एंट्री का। ओके, ठीक है। और जो अब कुछ लोग सोचते हैं कि नया नाम एक है, वो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आजकल एक बना हुआ है, वो संघ का ही एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुसलमानों के लिए अलग से बना दिया गया है। दिस इज मेड बाय, ये संघ का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाला साहब देवरस ने मुसलमानों की एंट्री शुरू की। ये बात है 70s की, 73 में वो बने थे तीसरे सरसंचालक। तो उसके बाद तो आज 73 से 2019 बहुत लंबा समय हो गया। उसके बाद जो बड़ा फैसला किया गया वो थे केसी सुदर्शन, जो सरसंचालक थे, 5वें सरसंचालक। उन्होंने ये बनाया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसमें मुसलमानों को लिए अलग से पूरा का पूरा एक मोर्चा बना दिया गया, संस्थान बना दी गई, और वो पूरा का पूरा काम मुसलमानों के इंटरेस्ट की बात देख रहा है। और जो ये ट्रिपल तलाक का मामला आया, जो अभी नकवी साहब हैं हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री, उन्होंने जो 5 करोड़ स्कॉलरशिप की बात की है, मुसलमानों को बराबर का दर्जा देने की बात की है, वो सब बातें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एजेंडा है। क्या बात? ट्रिपल तलाक भी उसी का एजेंडा है। ट्रिपल तलाक भी उसी का एजेंडा है। लेकिन एक बड़ा फर्क है कि वो जो बात कहते हैं बार बार कि अपीजमेंट नहीं करना, सबको बराबरी की बात करना,
तो उसकी वजह है भागवत जी का, यदि आपने जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2018 का विज्ञान भवन में उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने ये तो कहा ही है कि भाई मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसकी एक बारीक बात है जिसे हमें समझना चाहिए, जो हम नहीं समझते हैं। हम सब लोग हम अब संघ को महान मानते हैं कि भाई एक बड़ा दरवाजा उन्होंने खोल दिया है इंडिया गेट की तरह से मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व नहीं है, लेकिन मुसलमान जो हैं वो हिंदू ही है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात, गुण इसमें मतलब गुण छिपा हुआ, इस बात के गुण छिपा हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो हिंदू ही है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान, हाँ, क्योंकि हम उनके जो पेरेंट्स हैं और फादर्स हैं वो सब लोग हिंदू हैं, मतलब कन्वर्टेड हैं। और गोलवलकर जी ने और संघ ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी, जो वीर सावरकर की हिंदुत्व की परिभाषा से अलग है। हिंदुत्व की परिभाषा बहुत इस हिंदुस्तान में अलग अलग स्तर पर अलग अलग दी गई। वो स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, वो वीर सावरकर का हिंदुत्व अलग है, वो आदि शंकराचार्य का हिंदुत्व अलग है। तो वो जो हिंदुत्व है संघ का, वो संघ का हिंदुत्व वीर सावरकर से जुड़ता हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि जो इस को मातृभूमि मानते हैं, इसको पितृभूमि मानते हैं, जो मुसलमान, जो ईसाई, जो यहूदी हिंदुस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते, जो अरब में, जो मक्का में, मदीना में किसी को अपनी पितृभूमि मानते हैं, मतलब पुण्य भूमि मानते हैं, वो हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है। थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है। मतलब बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि आरएसएस के पास, मैं एक बात नोट कर रहा था जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन किताब से करता है मुझे जी, कि आज आरएसएस के पास एक अच्छा मौका है, प्लेटफॉर्म भी है। कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा यूथ जो है, वर्ग है, वहां पे काम नहीं हो रहा सर, मुझे लगता है। उन्होंने निक्कर से पैंट तो बना दी है, पर कहीं ना कहीं जो पहुंचने का जो तरीका है वो नहीं पहुंच रहा। मतलब मैं अगर आज बात करूं, मैं 6ठी-7वीं क्लास से मैं आरएसएस शाखा में जाया करता, तो आज भी ये बात जो आप मुझे बता रहे हैं, ये बात मुझे लगता है कभी सुनी नहीं। इससे परसेप्शन चेंज रहेगा आपने क्या? मैं संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के साथ बैठा हुआ था। आपने बहुत अच्छी बात की है। दो चीजें हैं उसमें जुड़ी हुई, दो कंट्राडिक्टरी चीजें। एक तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि संघ युवा तक नहीं पहुंच रहा, वो इसलिए गलत है क्योंकि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो यूथ वोटर है उसने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, पिछले 5 साल में संघ की शाखाएं सबसे ज्यादा बढ़ी। दूसरी बात, तीसरी बात है, संघ ने शाखाओं का तौर तरीका बदल दिया। अब नेकर पहनकर, पैंट पहनकर शाखा में, मैदान में जाना जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि आपको शर्म लगती है। तो उनका नहीं, आप मत जाइए, आप वीकली शाखा में आइए, आप शाम की शाखा में आइए, शाम की शाखा में नहीं आ रहे तो शाम की बैठक में आइए, शाम की बैठक में नहीं आ रहे तो लैपटॉप पर बैठिए और कनेक्ट कीजिए। आज नेट पर संघ की शाखाएं चल रही हैं। फिर उन्होंने कहा आप नेट पर भी संघ की शाखाओं में नहीं जाते तो संघ के किसी प्रकल्प को, मतलब कोई दूसरा जो काम चल रहा है, सेवा भर्ती का काम है, विद्यार्थी परिषद का काम है, वनवासी परिषद है, जो भी आपका काम है उससे जुड़े रहिए। समझ गए? उस ट्रेन में बैठ जाइए, स्लीपर क्लास में मत जाइए। आप फर्स्ट एसी वाले हैं, ट्रेन में तो चढ़िए। वो ट्रेन में चढ़ गया यूथ, आप समझ नहीं रहे, वो फिर सेकंड एसी में आएगा, फिर फर्स्ट एसी में आएगा, सब कहीं भी चला जाएगा। आपको पता है कि केरल में संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, 4,500 शाखाएं हैं। समझ गए? और जितना 2019 में हिंदुत्व को लेकर केरला में काम हुआ, वेस्ट बंगाल के चुनाव नतीजे आपको क्या बताते हैं? संघ का काम है। उड़ीसा में जो 2019 के चुनाव के नतीजे वो क्या बताते हैं कि वहां पे वनवासी परिषद ने, आदिवासी परिषद ने, संघ के प्रकल्प ने काम किया है। वो काम केवल बीजेपी का नहीं है। आपने कब देखा था उड़ीसा में बीजेपी के लीडर्स को जाते हुए? आपने कब देखा अमित शाह को चुनावों के 6 महीने से पहले जाते हुए बंगाल में? लेकिन वहां पर काम हो रहा था। आप सोचिए त्रिपुरा में कैसे सरकार बनी है, आप बताइए कि असम में कैसे सरकार बनी। नॉर्थ ईस्ट तो बीजेपी वालों को नहीं पता था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्थ ईस्ट तो बीजेपी वालों को नहीं पता था कि हिंदुस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार है। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वही जो आंधी है वो वेस्ट बंगाल में आंधी आ रही है उस चीज की जी। अभी आपने एक इस बुक में एक अध्याय लिखा है, बीजेपी का असली नायक जी, और उसकी शुरुआत आपने बहुत अच्छे तरीके से की, जिस तरह से
महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों कौरव लड़े आपस में। उसके बाद एक आपने राजा बबरिक की बात किया। मैं चाहूंगा उसके बारे में बताएं कुछ आप हमारे दर्शकों को, कि जो आज कि राजा बबरिक ने क्या कहा उसके बारे में। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो महाभारत जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये बात याद आई थी कि जब बुक का चर्चा हुई और इलेक्शन और नरेंद्र मोदी साहब आए तब हुई चर्चा कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया तो ये बात हुई कि उस पर कमेंट्री कौन करेगा, और एक ऐसी इंडिपेंडेंट कमेंट्री की जरूरत थी, मतलब एक निष्पक्ष, मतलब हमारे तरह मीडिया की तरह से ना हो कि आपके पक्ष में इसके पक्ष में, एक निष्पक्ष कमेंट्री हो। तो उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा आदमी हो जिसने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया हो, जिसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो किसी न किसी पक्ष में होंगे, कौरव के होंगे, पांडवों के होंगे, किसी पक्ष में होंगे। तो कृष्ण ने से चर्चा हुई, भीष्म से चर्चा हुई, सब हुई, तो राजा बर्बरीक का नाम आया। राजा बर्बरीक ने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो राजा बर्बरीक को कहा गया, जिनको राजा बर्बरीक को कहा गया कि क्या आप प्रभु ये कमेंट्री कर सकते हैं कि जिसमें निष्पक्ष भाव से आप बता सकें कि महाभारत में कौन किस पक्ष में खड़ा था, कौन कौरवों के पक्ष में था, कौन पांडवों के पक्ष में था, कौन युद्ध कर रहा था, ये सब। तो राजा बर्बरीक ने कहा, हाँ मैंने पूरा युद्ध देखा है, लेकिन वहां तो हर तरफ कृष्ण है, कृष्ण ही युद्ध लड़ रहे हैं। कौरवों की तरफ से भी, पांडवों की तरफ से भी, पांडवों की, मतलब पूरा युद्ध जो है कृष्ण लड़ रहे हैं। तो जब 2014 के चुनाव हुए खास तौर से, तो यदि आपको वो चुनाव याद हो तो ज्यादातर लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता था। इनफैक्ट जब वो जीत गए तो भी आपको पता नहीं था कि ये सांसद साहब कौन है जिसको आप वोट देकर आए। बहुत मेजर चेंज आया है, क्योंकि वहां सारा इलेक्शन नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब ने 2019 में भी कहा सभाओं के अंदर कि आप जो वोट देंगे वो मेरे पास जाएगा, मेरे पास है, क्योंकि उनको पता था कि एमपी ने काम नहीं किया है। एमपी का नाम आते आते ही आप टिकट वोट नहीं दोगे, तो उनका एमपी को भूल जाइए। जो वोट देना है वो आपका वोट मेरे खाते में आने वाला है, मोदी के खाते में आने वाला। तो भारत का मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा हर जन को लगता भी है ऐसा जी। मैं तो एक और चेंज मैंने महसूस किया इस इलेक्शन के अंदर, या पिछले कुछ इलेक्शंस में। पहले क्या होता था कि घर से जब हस्बैंड वाइफ वोट कास्ट करने जाते थे तो हस्बैंड ने बोल दिया यहाँ वोट कास्ट करना है तो वही वोट कास्ट करना है। तो जैसे आप कह रहे हो कि यूथ ने वोट दिया, मैं कहता हूं कि जो हमारे देश की मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्शन के अंदर। इवन मुस्लिम मातृशक्ति की बात भी करूं मैं, तो क्या ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, चाहे वो तलाक की बात करें, चाहे वो गैस की बात करें, चाहे टॉयलेट की बात करें, तो हाउ डू, मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ कि सही ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा हुआ है। फोकस नरेंद्र मोदी जी ने फोकस ही उस पर किया, योजनाओं पर। आपने गैस का उज्ज्वला योजना का चर्चा की, तो 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे गए। ओके, ठीक है, तो 8 करोड़ परिवार हो गए। 8 करोड़ महिलाएं तो कम से कम हुई, तो वो 8 करोड़ महिलाएं, उसमें से 5 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ ने तो उनको वोट दिया ही होगा। और 2019 के चुनाव नतीजे देखेंगे तो उसमें जो वोट कास्ट हुआ है वो महिला और पुरुषों का, मेल और फीमेल का जो वोट कास्टिंग है वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका मतलब महिलाएं निकल कर रही। फिर आपने ट्रिपल तलाक की बात की तो वो भी आया। टॉयलेट की जो बात की, उसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो महिलाओं को हुआ है। मैं इसका बहुत एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं हिसार में एक इलेक्शन में गया था मैं, और हिसार में एक भारत विकास परिषद की प्रेसिडेंट लेडी थी वहां पे। मतलब आप मानिएगा, मैं उसके घर पे गया, मोदी साहब आएंगे, मतलब उसका एक एक्सप्रेशन था मोदी जी को लेकर, मतलब वो लेडी पागल थी मोदी जी को लेकर, कि उसको लगा कि इलेक्शन हिलने वाला है कहीं ना कहीं, तो शी वाज इन एंजाइटी। तो इस तरह का एक मेजर चेंज मैंने महसूस किया है वोटर्स के अंदर। जी, देखो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो खासियत है, अडवाणी जी ने एक बार कहा था मोदी जी को लेकर कि ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन प्रेजेंट इंडियन पॉलिटिक्स। और ये किसी हद तक सही बात भी है। हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल पार्टी को ले लीजिए, कोई मीडिया हाउस को ले लीजिए, इनफैक्ट बीजेपी को भी ले लीजिए, तो कोई ऐसा नहीं बचा जिसने मोदी की आलोचना नहीं की हो किसी न किसी वक्त में। लेकिन वो उस सबको पार करके आए।
वो इसलिए क्योंकि वो नब्ज को समझते हैं। तो मुझे तो लगता था आलोचना से उसकी प्रसिद्धि होती है। अगर कोई किसी की आलोचना करे तो मैं आलोचना से प्रसिद्धि होती है। नायक बनने के लिए आलोचना जरूरी है, लेकिन उससे पार पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। क्रिटिसाइज आपको कोई करता है तो आप उससे कई बार डाउन भी हो जाते हैं, ये भी बहुत बार होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको पाया। और दूसरी बात, वो आदमी की नब्ज को समझते हैं कि कहां पर स्ट्राइक करना चाहिए। जब देश में डिमोनेटाइजेशन को लेकर परेशानी हो रही हो, और मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान को लेकर ठीक से पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं बन रहा हो, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी काम आती है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई शाम को 8 बजे मोदी जी टीवी से अनाउंस कर दे कि आर्टिकल 371 जो है वो हमने हटा दिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया जी। तो अमित शाह कर सकते हैं अमित शाह जी आए हैं गृह मंत्री बनकर, राजनाथ जी को बदला गया है, राजनाथ जी की जगह नया गृह मंत्री बनाया गया है, तो उसका कोई मकसद रहा होगा उनका। अब वो कितना उस पर काम कर पाते हैं, कितनी जरूरत पड़ती है, ये सब बातें हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स क्या कहती है, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कहती है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अमित शाह को राजनाथ सिंह जी की बजाय होम मिनिस्टर बनाने का मतलब है कि वो एक नीतिगत तौर पर, पॉलिसी के तौर पर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं। वो धारा 370 बदल देंगे या 35A बदल देंगे। विजय जी, इसी को लेके मेरा अभी मैं चाहूंगा कि बस 2 minutes we are just finishing our discussion and we'll have a separate question session। आपने कल की बात दी, आज की बात भी हमने, तो कल से हम क्या डिफाइन करते हैं? कल क्या दिखलाता है बेसिकली, जो क्या प्रारूप लेके चल रहा है बीजेपी का कल? कल जो है, अभी राजधानी चल रही है, राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन की बात की है, और एक और नया शगुफा छोड़ दिया इस इलेक्शन में। निर्मला सीतारमण जी ने हर घर जल, मतलब इतना बड़ा उन्होंने एक पासा फेंका है। ये मुझे लगता है कि ये तो पूरे देश में हिला है। लेकिन ये सबसे बड़ी जरूरत है ना, जरूरत भी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बहुत मीडिया ओरिएंटेड हो गए आजकल के लोग। तरुण जी क्या करते हैं, सारी फाइलें 6 बजे निपटाने के बाद 8 बजे घर आकर जब बैठते हैं तो फिर टीवी देखते हैं, तो फिर निर्मला सीतारमण दिखती है। आपने निर्मला सीतारमण को यदि टीवी नहीं देखती है तो आपको उस दिन पता पड़ना चाहिए था जिस दिन 2019 की सरकार बनी और गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रधानमंत्री ने एक नया मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय। बिल्कुल ठीक है। तो जिस दिन जल शक्ति मंत्रालय बनाया उस दिन तय हो गया कि निर्मला सीतारमण के बजट में ये लिखा जाएगा कि हर घर जल जल। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन आज किताब पर क्या और जनरल बीजेपी का जो एक स्वरूप है वो हमें जानने का मौका मिला। लास्टली मैं जैसे अभी विजय जी ने बुक में लिखा भी है कि वडनगर जहां से हमारे मोदी साहब बिलोंग करते हैं वहां के स्टेशन की चर्चा की, आपने विजिट भी किया है वडनगर की। और उसके बाद 11 अशोक नगर में अशोक मार्ग जहाँ पे बीजेपी का मुख्यालय हुआ करता है उसके पीछे एक छोटा सा कमरा में एक तख्त पे वाजपेयी जी और मोदी जी रहते थे उसमें। तो आपने उसको विजिट किया, आपने विजिट भी किया, उसको देखा भी? सर मैं तो मजदूर आदमी हूँ, वहाँ सब जगह जाता रहा। क्या मैं तो रिपोर्टर रहे हैं तो सब जगह गए। हमारे लिए भाग्य की बात है कि आज आपके मुख से हम उसको एहसास कर पा रहे हैं उसको। तो लास्टली मैं हमारे अटल जी की एक छोटी सी पंक्तियां हैं, मैं उससे भी बात समाप्त करूंगा और हाउस आपके लिए ओपन रहेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अटल जी की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है कि उसी पे काम चल रहा है और बहुत अच्छे से विजय जी ने आज हम सबको अपने एक्सपीरियंस से लाभान्वित किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अलग अलग शहरों में, नागपुर में गया, पुणे में गया, चंडीगढ़ में अभी था, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में हमेशा ऐसे जाता हूँ कि हर जगह पर मुझे बहुत सीखने को मिला, कुछ तो मेरा थोड़ा ज्ञान वाला मिलता है ताकि आप रोज मजाक ना उड़ा पाए। सर मुझे किताब में दिख रहा है सर, आप 2018 के बाद 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने में अगली किताब ले आए हैं।
तो कितना शोध किया होगा आपने। तो अब मैं हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू अवर ऑनरेबल गेस्ट अभिजीत जी। विजय जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, लाइक वी डिस्कसिंग इन कश्मीर, जैसे आज अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया बिकॉज देयर वाज अ सेपरेटिस्ट कॉल on this. How do you see the present situation evolving right now since Amit Shah is the Home Minister? Do you see any changes? अमित शाह के आने के बाद जो बड़े चेंज हुए, अमित शाह जी खुद भी अभी 2 दिन की यात्रा पर, उसका एक बड़ा चेंज आप देखिए कि पिछले 15 साल में जब भी कोई होम मिनिस्टर यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर गया है तो वहां जितने सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वो हमेशा होम मिनिस्टर की श्रीनगर या घाटी की विजिट के वक्त वहां पर बंद का कॉल करते थे। श्रीनगर, पूरा घाटी, राजौरी, पूंछ, उसी घाटी तक बंद होता था। तो पहला मौका है 15 साल में, 10 साल में कि अमित शाह की 2 दिन की विजिट में बंद का कॉल नहीं किया गया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मतलब ये उनका स्ट्रॉन्ग, उनका मैं बता रहा हूँ वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात, हर बार मुझे याद है कि वाजपेयी जी जब वहां गए थे तो वाजपेयी जी की कश्मीर नीति दूसरी होती थी और वो सबसे बातचीत करने के लिए तैयार होते थे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कश्मीर नीति पर कोई ने पूछा वहां पर श्रीनगर में, तो वाजपेयी जी ने अपने अंदाज में कहा कि बादल छटने लगी है। क्या बात है, ठीक है। लेकिन अमित शाह ने वहां पर इतना स्पेस नहीं दिया कि कोई सेपरेटिस्ट से मिलने की बात। वो अपने ऑफिसर से, गवर्नर के साथ, जो सिक्योरिटीज के इंचार्ज हैं उन लोगों से बात करते रहे। ये सब कुछ, और ये उन होम मिनिस्टर का है जिनके अध्यक्ष के तौर पर पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई। क्या any more question? I think your question is more valuable to us because your question will be a virgin question. मेरे को मोटिवेट करते कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा पार्ट लूं। सर मेरे पास 6 क्वेश्चंस है, लाइक 6 क्वेश्चन। यस सर। क्रिकेट का भी चल रहा है, सिक्सर है। सर आपकी आइज में किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, अमित शाह जो किंग मेकर है या फिर नरेंद्र मोदी जो एक्चुअली किंग है? सर बट आज जो हम बोलते हैं, क्या बात जितना अच्छा सवाल उतना ही उमदा आपने जो है। सर जैसे हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है आज वो शायद शाह ने नरेंद्र मोदी को बनाया, ऐसे लोग बहुत लोग सुनने को हमें मिलता है। तो हम यही बोलते हैं कि किंग मेकर जो है वो अमित शाह ही है। आज जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो अमित शाह ही चला रहे हैं ऑन द बैक। नरेंद्र मोदी सिर्फ डिसीजंस लेते हैं, साइन करते हैं, आके जो मेन गवर्नमेंट है वो भी अमित शाह चला रहे हैं। ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुन रहे हैं। जितना मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा कम जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी पूरी सरकार चला रहे हैं। पार्टी के तौर पर अमित शाह जी पूरा काम देख रहे हैं। और आपकी बात 100% सही है कि अमित शाह जी किंग मेकर हैं और नरेंद्र मोदी जी किंग हैं, लेकिन उस किंग ने इस किंग मेकर को बनाया है। जिसके उल्टा है इसमें। देखो किंग मेकर और लोगों को किंग बनाने की कोशिश कर जैसे रहे हैं। आपने लिखा भी अपनी बुक में कि एक समय आया था जब मोदी जी सीएम भी नहीं थे जी, तो एक बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अमित शाह ने कहा मोदी जी को पीए बनने के लिए तैयार हो जाओ, पीएम बनने के लिए तैयार। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपकी बात करें तो इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं अमित शाह ही किंग मेकर शुरू से रहे। जी, गुजराती में मुझे बड़ा भरोसा है। सरदार पटेल हो, गांधी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बहुत आगे की देखते हैं। आगे नेक्स्ट रिजल्ट वेरी फास्ट। सर जैसे आज हम बोलते हैं कि बीजेपी एंड मुस्लिम्स आर 2 डिफरेंट टर्म्स टुडे, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम्स को अपने साथ लेके नहीं चल पा रहे? ऐसा क्यों होता है कि जैसे लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड है अब्बास नेवर, वो मुस्लिम है जी, मैं उसकी फैमिली में जैसे ईद पे मैं उसके यहाँ विजिट करा, वहाँ पे उसके सारे रिलेटिव्स और वो सब बैठे हुए थे, they were like criticizing नरेंद्र मोदी और मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ उनसे। तो ऐसा क्यों है कि वो साथ नहीं चल पा रहे? आपको नहीं लगता कि कुछ हिंदू भी क्रिटिसाइज करते हैं नरेंद्र मोदी को? वो तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं ना। कुछ तो नहीं, बहुत है। तो देश में 18 करोड़ 16 करोड़ मुसलमान होंगे, ठीक है, और हिंदू कितने हैं? 100 करोड़ करीब करीब। 100 करोड़ में से 30 करोड़ हिंदू क्रिटिसाइज करते होंगे नरेंद्र मोदी जी को। तो फिर भी हिंदू ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुसलमानों से। क्या बात है, क्या बात है।
देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो वो उनको उसमें गवर्नमेंट में क्यों नहीं लाते, उनको इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? आपको याद नहीं है अभी जो उड़ीसा के लोकसभा जब चुनाव हुए नहीं, और वो हार गए वहां पर, पिनाकी मिश्रा वहां से बीजेडी के एमपी बने। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने अभी राज्यसभा जब चुनाव हुए तो अब संबित पात्रा राज्यसभा से एमपी हो गए। और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप स्टूडेंट है इसलिए, कि वो जो सीट है वो बीजेडी ने बीजेपी के लिए खाली छोड़ा। तो बीजेडी की मदद से संबित पात्रा बीजेपी के एमपी बने, जो लोकसभा चुनाव में बीजेडी के कैंडिडेट से हार गए थे। सर जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करी कि ऐसे 1 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुई थी, सर सबको ये पता लगा हमें कि मुकेश अंबानी ने अपने ऑप्टिकल फाइबर्स ले करने में वो सारा अपना जो ब्लैक मनी था वो लगा दिया। क्या ये सच है? इतनी बड़ी खबर मेरे पास आती नहीं। तो खबर नहीं मैं छोटी छोटी जगहों पर जाता हूँ, छोटी छोटी खबरों पर काम करता हूँ, कहाँ सड़कों पर खड़े हैं। और क्वेश्चन होता है कि जो आम लोग हैं वो लोग भी इंस्पायर होकर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं ना समाज में, देश में बदलाव हो रहा है जी, और उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, फिर वो चाहते हैं मैं भी पार्टिसिपेट करूँ इसमें जी। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती नहीं। मतलब सरकार तो सरकार में है, वो तो अपना काम कर ही रही है, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करें। लेकिन अगर ग्राउंड में अगर आपको एक छोटा सा काम भी करना चाहें तो वो बड़ी अड़चन है। कुछ बता सकते हैं कैसे पहुंचे उन तक? देखिए, दो बातें। एक दुविधा क्या है कि मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो रामचरितमानस में जब समुद्र पर पुल बनाने की बात हो रही थी, तो बड़े बड़े लोग जो हैं पुल बनाने का काम कर रहे थे। उसमें जो गिलहरी थी, उसने सोचा मैं भी कुछ काम करूं इसमें, तो वो अपने मुंह में भर के मिट्टी को ले जा रही थी। अब समुद्र पर पुल बनाने में गिलहरी कितना करेगी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन था और राम ने उसको रिकॉग्नाइज किया, तुलसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि आप अपने स्तर पर क्या काम करते हैं। हमारी जो दुविधा है, आपके लिए नहीं कह रहा, मेरे जैसे छोटे आदमी की, कि हम हैं तो गिलहरी, लेकिन काम हम राम जितना ही करना चाहते हैं। क्या बात, जॉब मिल गए। और मैं बात करें बतरा जी हमारे जो वो काम करते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं हाँ, और अच्छा काम करते हैं। उन्होंने तो मेरे को इज्जत दी है कि बोले कि हम जैसे हम गिलहरी हैं, उन्होंने भी कहा वो भी हम गिलहरी गिलहरी हैं, हम गिलहरी अच्छी बात है। हैं। सब अपना अपना काम करते रहते हैं। हमको लगता है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्लियर आंसर मुझे मिला। थैंक यू सर। हमारी मातृशक्ति की कोई क्वेश्चन, कोई, क्योंकि अब तो निकिता जी आप, रोहित जी गिलहरी का उदाहरण दिया, सिंचा उदाहरण में सुनाई दिया। सर एक क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, तरुण जी से भी और आपकी, डिमोनेटाइजेशन के बाद जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मीटिंग हुई, उसमें फाउंडेशन डे पे जब मोदी जी गए, उनको ज्यादा खुश नजर नहीं आया चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने कहा कि जिनका काम बही को सही करना था, उन्होंने अपना जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। तो वो नाराजगी उनकी अभी दूर हुई है कि नहीं हुई है? मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ था नहीं। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि सिस्टम में, अदरवाइज आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सर, यह दरा तो आपका है। आप तो खुश है चार्टर्ड अकाउंटेंट से? नहीं, हम तो खुश है के बाद, लेकिन वो जो नाराजगी मेरे को लगता है अभी दिखती है उनकी चेहरे पे। वास्तव में कहते हैं कि उन्होंने अपना दायित्व का निर्वाह सही से नहीं किया। सर आई थिंक दिस इज नॉट द नहीं, मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुश हैं कि नहीं खुश हैं। आप तरुण जी से खुश हैं उनके काम से? डिमोनेटाइजेशन के बाद आप उनके काम से खुश हैं? सुमन जी, विजय जी मेरे क्वेश्चन है, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, आपको बड़ी क्लोजली मैं वॉच करता हूँ जब आपकी रिपोर्टिंग होती है। कालोराज कल मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने कही कि कांग्रेस मुक्त भारत, और जिस हिसाब से लग रहा है हर कोई बीजेपी में शामिल होने को तैयार है, सदस्यता भी खूब ग्रहण हो रही है, कांग्रेस से भी हर कोई दल आ रहा है, तो क्या ये पूरी तरह से कांग्रेस को भारत की तरफ बढ़ते कदम, क्या कांग्रेस का भविष्य है?
सर आप 1984 को याद करेंगे तो इस सवाल का जवाब नहीं। 1984 में बीजेपी खत्म हो गई थी और 2 सीट आई थी उसकी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी भी चुनाव नहीं जीते थे। तो तब भी लोग कह रहे थे कि ये देखिए ये पार्टी तो खत्म हुई, बहुत बड़े हीरो बन रहे थे। अभी तो 54-57 सीट्स हैं कांग्रेस की। कुछ राज्यों में सरकार भी है, कुछ राज्यों में आज गिरने वाली है, कल गिर जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में है सरकार, है ना। तो अभी बेहतर स्थिति में है बीजेपी के मुकाबले। 1984 में बीजेपी और 2019 में कांग्रेस बेहतर स्थिति। वो बीजेपी का स्टार्टिंग था और कांग्रेस तो क्या इतना डाउनफॉल? सर 98 याद कीजिए, 96 के अध्यक्ष बनी थी, उससे पहले नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष थे। कांग्रेस में बहुत सारा बंटवारा हुआ, अलग अलग कांग्रेस बन गई, कांग्रेस टी, कांग्रेस चिदम्बरम, कांग्रेस मूपनाथ, पता नहीं कौन कौन सी कांग्रेस बनी थी। और जो गोप भवन में बैठी हुई थी सोनिया गांधी, वो जब निकल कर आई तो सबने कहा कि ये क्या जीतेंगी। और बहुत सारे लोग हमारे मित्रों ने कहा कि वाजपेयी, आडवाणी, प्रमोद महाजन, जेटली, सुषमा स्वराज जैसे बड़े लीडर्स के आगे सोनिया गांधी और कांग्रेस क्या करेगी। और 98 से 2004 आते आते क्या हुआ है वो आपने देखा है। तो इंतजार करना चाहिए, हमें तो रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन कांग्रेस के समय अध्यक्ष नहीं है, तामसी चल रही है कि मैं नहीं बनूंगा, उसको बनाऊंगा। तो क्या और अभी तो उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, राजस्थान में सरकार बनाई है, तो इतना निराश क्यों आप कांग्रेस से? दो तो टूटने वाली है सरकार। क्या बोला सर? 2 सरकार दो सरकार तो टूटने वाली है। सर ये तो आपको जानकारी ज्यादा रहती है। अरे नरेंद्र जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं समझता हूँ कोई भी नई सरकार या शासन आता है, 12 करोड़, एक छोटी सी बात जोड़ दूं, इस चुनाव में भी 2019 में भी कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले। तो मतलब 10% हिंदुस्तानी अभी उनके साथ है, और वोटर के हिसाब से देखो तो 15% वोटर उनके साथ है। तो कोई बुरी बात नहीं, 15% में तो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर रह सकती कांग्रेस। अदनी मेरा कहना है चेंजेस द रूल ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? और ये भी मैं समझता हूँ कि हर चीजों को तब्दीली आना, रिफॉर्म्स आना समय लगता है। 5 साल में के कार्यकाल में कोई भी मैजिकल काम नहीं होता। चलिए अगले 5 साल मिल गए, मगर एक बात क्या है, बड़ा वो है जैसे आपने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट से नाराज हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सिस्टम्स अमेंड हो रहे हैं, सिस्टम्स जीएसटी आ रहा है, कई सिस्टम्स ठीक हो रहे हैं। तो दूसरे जो नेगेटिव सिस्टम्स हैं उसका मीटर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब उसका रेटलेस रेट कार्ड जो है, किसका? जो रिवर्स नेगेटिव साइड होता है सिस्टम्स का, जो डिक्टेटरशिप होती है, जो एरोगेंस होती है जी, वो बढ़ गई है। मैं 25 साल 30 साल से व्यापार में हूँ, सरकारी अफसर का बेटा हूँ, सरकारी घरों में रहा हूँ, सरकारी अफसरों में उठा बैठा हूँ। तो जितनी एरोगेंस और जितनी मैंने भ्रष्टाचार इस सरकार में देखी है, खुद मैंने किसी सरकार में नहीं। लेकिन मैंने सुना कि अब तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ गया है जीएसटी को लेकर। सिस्टम तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद आप जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम का मतलब ऑनलाइन कनेक्शन का मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको सरकार के लोगों से नहीं बैठना है। वो आदरणीय वो सिस्टम आना है, आया नहीं है, आ रहा है। इतना बड़ा देश है, उस आने में उन्होंने हमारा जो है चक्के लगा दिए। सर 70 साल में तो आपने ये सोचा ही नहीं था कि हमें सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना है। अभी होगा तब पता लगेगा, अभी तो सुन ही रहे हैं सर। हम तो म्यूनिसिपैलिटी का हाउसिंग जो टैक्स होता है, हाउस टैक्स जमा कराने के लिए भी 500 रुपए हाउस टैक्स और 50 रुपए क्लब को देना पड़ता था ना। मेरे ख्याल से आज तो आप एनडीएमसी मोदी जी के बदलाव से पूरा जमा करा सकते हैं। मोदी जी के बदलाव से पूरा देश खुश है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस, उनकी इंक्लिनेशन बहुत अच्छी है। तो पूरे सिस्टम को रिवॉल्व करना, सिस्टम को अमेंड करना, वो भी 100% विदाउट ए कैबिनेट, वेरी डिफिकल्ट। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एकदम नहीं सुधारा जा सकता। पूरे सिस्टम को ठीक हुआ है कि कुछ हम सही रास्ते पर चलने लगे। अब जैसे सर मैं अभी बदरपुर बॉर्डर से आ रहा था, तो फरीदाबाद में बहुत आता रहा हूँ, मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। तो उस समय बदरपुर बॉर्डर पर ही क्रॉस करने में 1 घंटा लगता था, लेकिन बदरपुर बॉर्डर से पूरे जो ये एक्सप्रेसवे बना, तो वहां से बदरपुर बॉर्डर से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगते थे। तो ये सिस्टम सुधरा है। लेकिन नहीं, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि वो सिस्टम सुधरा है। लेकिन आज मुझे बदरपुर बॉर्डर से यहाँ आने में 1.25 घंटा लगा, तो मैं इस बात की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिस्टम में तो बदलाव हुआ ही है। बहुत सारी चीजें
बदलती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। कांग्रेस बीजेपी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन जो भी सरकार कर रही है अच्छा। और ये तो कहना ही नहीं चाहिए जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने जब यहाँ तक यह किस्सा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और वो आखिरी बूंद यदि आप डालें और घड़ा बढ़ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी बूंदें आपने डाली थी। आज बूंद बूंद से घड़ा भर गया होगा, लेकिन वो बूंदें और लोगों ने डाली है। Thank you. It was a wonderful learning. So now I would request Mr. Rohit Jain, Chairman DPS Greater Faridabad, to please come up and felicitate Mr. Vijay Trivedi. And I would also take. क्षमा था, क्षमा। Welcome Rohit ji. Please. नहीं करो 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 क्लोज हो गया सर। Your signed copies from here. The author is with us, so please come up and then before you leave us, so please take your signed copies. उन्होंने सही समझा कि इस आदमी को समझ की जरूरत है। किताब है बीजेपी कल आज और कल। ये सिर्फ बीजेपी पर किताब नहीं, ये हिंदुस्तान की राजनीति को बताती है कि कल बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान की राजनीति कैसी थी, आज कैसी है और कल हिंदुस्तान कैसा होगा। बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको हमने जिम्मेदारी दी है हिंदुस्तान का कल बनाने की। क्या वो इस काम में सफल होगी, ये किताब आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। फरीदाबाद आकर बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन का, एहसास वुमन ऑफ फरीदाबाद का, दैनिक जागरण का, बुक्स एंड बियॉन्ड का और श्री सीमेंट का। इन सब के बिना ये प्रोग्राम नहीं होता। सच में इतना आनंद कहीं नहीं आया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।